Now these fatty acids as such do not remain just as fatty acids, but they will be getting converted into glycerides, triglycerides, monoglycerides और diglycerides. So उसमें क्या होता है कि जो fatty acid होते हैं compounds, these fatty acids will be combining with glycerol to give rise to triglycerides or monoglycerides or diglycerides, depending on what will be the number of fatty acids that are getting attached. So this we can have it as glycerol का structure है CH2OH, CHOH and CH2OH. This is a glycerol. Glycerol when reacts with RCH2COOH as a fatty acid. So when it reacts, R यहाँ पर ग्रुप कोई भी एक अल्किल चेन है, चेन लेंथ कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर फैटी एसिड. अगर पामेटिक एसिड है तो R will be equal to 14, क्योंकि पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, दो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी 14 यहाँ पे R में रहेंगे. स्टेरिक एसिड रहेगा तो यहाँ R में 16 होगा, एसिटिक एसिड होगा तो 18 कार्बन. So that chain will be there. This part we call it as tail and this part we call it as head. जो कार्बोक्सिल पार्ट है, कार्बोक्सिलेट पार्ट जो है वो हेड होता है फैटी एसिड का, और जो R ग्रुप होता है, मिथिल एंड होता है, वो टेल होता है. So this will get attached to glycerol as this way. अगर और फैटी एसिड्स आते हैं अंदर में, then we can have it further. If this is our R1, अगर यहाँ पे हम R1 आता है, if it is R2 and say R3, then we will have CH2O, CO, CH2, R1, CH, R2, here we will have CH2O, CO, CH2, R3. If R1 equals R2 equals R3, then we call this as simple triglyceride. We call this as simple triglyceride. If R1 not equal to R2 not equal to R3, यदि एक भी उसमें अलग होता है कुछ, then we call this as mixed triglyceride. Mixed triglyceride and simple triglycerides. ये आपको एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, what are triglycerides and how they are formed. So this is simple reaction. Glycerol को fatty acid के साथ combine करना है, we will get an ester. Glycerol is a trihydroxyl group, trihydroxy alcohol. So उसमें हर alcoholic group पर एक fatty acid ester bond बना सकता है. So we have three hydroxy groups, so three ester bonds will be formed. If all the three acidic groups are same, then simple. अगर अलग अलग है तो mixed. अगर दो same है और एक भी अलग है तो भी वो mixed triglyceride बनेगा. That is, if R1 equals R2 not equal to R3, then also it will be mixed triglycerides will be formed. So this is how triglycerides can be generated. Then we have unsaturated fatty acids. This was till now we have seen about the saturated fatty acids. इस saturated fatty acids में एक step आया था जहाँ पे unsaturation हमारा आ रहा था, molecule के अंदर में हमारा unsaturation आया था. Like here we have it from this hydroxy beta hydroxy thioester से
डिहाइड्रेटेज एंजाइम के बाद में हमारे पास एक ट्रांस डबल बॉन्ड आया था अनसैचुरेटेड फैटी। अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि एक तो ये कॉन्जुगेटेड है। फर्स्ट यहाँ हमने जो फर्स्ट देखे थे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन में और इट इज इन ए नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन, दे आर नॉट इन अ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ कीटो और सीओ ग्रुप के साथ में वो कॉन्जुगेशन में, सो एक वो नहीं चलेगा। दूसरा होता है कि हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी डबल बॉन्ड्स की वो स्पिस थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांस बनता है। So these two things are there whereby these is not hydrolyzed at this position. Beta hydroxy बीटा हाइड्रोक्सी थायोस्टर से डिहाइड्रेशन के बाद हमें जो इनॉइल मिलता है वो इनॉइल का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बिकॉज दैट इज वन वे दैट वी कैन जनरेट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बॉडी में नहीं मिलते हैं। So it goes to first synthesis of saturated fatty acid. Saturated fatty acids बनने के बाद में उसमें unsaturation sites of unsaturation लाया जाता है अलग से। So that sites of unsaturation depends on whether it is coming from a plant source or an animal source. So fatty acid, unsaturated fatty acids can be generated from saturated fatty acids. So this will be coming from saturated fatty acids only. After formation of saturated fatty acid, it will be generating unsaturated fatty acid. So first we will have a saturated fatty acid. Let us say we have a steric acid. So steric acid का हम structure निकाल सकते हैं. Steric acid is 18:0. Right? This is our steric acid. Simple जो हम उसका नाम दे सकते हैं 18:0 means 18 carbon fatty acid with 0 number of double bonds. So that we can write it as this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is our steric acid. Or we call it as 18:0 fatty acid. So this 18:0 fatty acid undergoes कार्बन साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन इनकॉर्पोरेशन, और इसमें होता है कि ये जो R ग्रुप हमने जो निकाला है, दिस R ग्रुप विल डिपेंड ऑन वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। अगर एनिमल्स या फंगई में है तो R ग्रुप इज इक्वल टू कोएंजाइम A इन animals and fungi, while R is equal to ACP, acyl carrier protein in plants. अगर प्लांट्स होगा तो असाइल कैरियर प्रोटीन होगा यहाँ पर, और अगर एनिमल्स होगा तो कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच रहेगा, बाकी इट विल बी ऑल सेम। सो फर्स्ट रिएक्शन सभी में प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होगा, स्टेरिक एसिड टू ओलिक एसिड कन्वर्जन में। स्टेरिक एसिड टू ओलिक एसिड में से कन्वर्जन में इट विल ऑल बी रिमेनिंग वन एंड द सेम। तो हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पोजीशन यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा। So we will have a double bond here, baki it all remains same. This becomes oleic acid. This oleic acid now can be processed by plants or fungi. Either plants or fungi, it will be then generating the double bonds at methyl end and not towards the carboxyl ends. So the second double bond will be now coming at methyl ends. This is our 18:1 9C
Now, if it is processed by plants or fungi, then we will have this as 6. Pana. we have 10 more minutes. This is 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. We have at 9th position and at 12th position we have a double bond. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12th position. So this becomes our linoleic acid. Linoleic acid 18 is to 2, 9C, 12C. This is the linoleic acid, and if this linoleic acid is further processed by again plants or fungi, if it is further processed by plants or fungi, then we will have this is 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This becomes our alpha linolenic acid. Alpha linolenic acid with the 18 is to 3, 9C, 12C and 15C. So यहाँ पे अगर ये लिनोलिक एसिड का अगर प्लांट्स और फंगाई में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अल्फा लिनोलेइक एसिड मिलेगा 18:3 एट 9, 12 एंड 15 नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अगर ये लिनोलिक एसिड कंज्यूम होता है किसी एनिमल में और कंज्यूम होने के बाद में एनिमल अगर इसको प्रोसेस करता है देन वी विल हैव दिस एज यहाँ पे ओरिजिनली 2 डबल बॉन्ड्स थे हमारे, वो वैसे ही रहेंगे एंड हियर वी विल हैव अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर के कार्बन पे, 9 नंबर के कार्बन पे और 12 नंबर के कार्बन पे। दिस वी कॉल इट एज गामा लिनोलेनिक एसिड, which is again 18:3, but now it is 6C, 9C and 12C. What is important to remember is that हमेशा फर्स्ट जो डबल बॉन्ड आएगा वो एट 9th पोजीशन पर आएगा। फर्स्ट डबल बॉन्ड विल ऑलवेज बी एट अवर 9th पोजीशन। फिर सेकंड डबल बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन अगर ये प्लांट्स के साथ प्रोसेस होता है, प्लांट की बॉडी में है तो ये नेक्स्ट आगे वाले कार्बन्स पर जाएगा और फिर उसमें बाद में अगर फिर से प्लांट्स में आता है तो और आगे में नंबर पे जाएगा और अगर वो एनिमल में आता है तो टुवर्ड्स कार्बोक्सिलेंट यानी पीछे वाले में जाएगा। अगर यहाँ पर ही ओलिक एसिड अगर ये एनिमल्स में कंज्यूम होता है, अगर ये एनिमल में कंज्यूम होता है ओलिक एसिड एंड इट इज देन टेकन केयर और इट इज प्रोसेस्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड अगर वहां पर आता है तो दैट सेकेंड डबल बॉन्ड विल बी coming at 6th position and not at the 12th position। तो यहाँ पे हमारा 12th position में आया था लिनोलिक एसिड में, उसकी जगह पे यहाँ पे हमारा 6th position पे आएगा and not at the 12th position। So here we will have 18:2 and 69C if it is processed by animals। So sites of unsaturation or position of unsaturation will be decided whether it is processed by animals or it is processed by plants and fungi। तो plants and fungi में वो towards methyl and double bonds आते हैं और animals में towards carboxyl end में double bonds आएंगे। लेकिन दोनों ही में फर्स्ट डबल बॉन्ड जो होगा वो 9th कार्बन पर ही आएगा, उससे दूसरे इसमें नहीं जाएगा। दैट इज फॉर पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। एरिचिडिक एसिड या उसके आगे वालों में पोजीशंस अलग होते हैं। पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड में 9th कार्बन पर ही होते हैं। Further thing that you need to remember is that
when we have saturated fatty acids, these saturated fatty acids are normally semi-solids or solids. They are solids at room temperature or semi-solids at room temperatures. While unsaturated fatty acids, these are normally liquids in room temperature. Saturated fatty acids are more or predominant in animals. They are predominant in animals, or unsaturated fatty acids are predominant in plants as well as fish. Except this fish is also an animal, लेकिन fish और plants में ये unsaturated fatty acids ज़्यादा होते हैं और saturated fatty acids animals में ज़्यादा होते हैं. दोनों में saturated unsaturated दोनों होते हैं, लेकिन proportion animals में saturated fats का ज़्यादा होता है और plants and fishes में unsaturated fatty acids का ज़्यादा होता है. इसी की वजह से काउ एंड बफेलो मिल्क में हमें घी मिलता है, नॉट ऑयल. और प्लांट सीड्स जो होते हैं, ग्राउंडनट सीड्स या सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, कॉटन के जो सीड्स होते हैं, इसमें से हमें ऑयल मिलता है, नॉट घी. ऑयल एंड घी बोथ आर फैट्स, बोथ आर फैटी एसिड, जस्ट द कंपोजिशन इज डिफरेंट. कंपोजिशन में ज्यादा अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो वो लिक्विड की तरफ में चला जाता है, और अगर कम फैटी एसिड जो कम अनसैचुरेशन होगा और ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होंगे तो वो सेमी सॉलिड की तरफ में जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है. तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है. इसमें फिशेस में उनको बैलेंस बनाए रखने के लिए, अपना वाटर के अंदर में उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें लिक्विड फैट्स की जरूरत होती है. इसकी वजह से वहां पर भी हमें अनसैचुरेटेड फैट्स का प्रोपोर्शन ज्यादा मिलता है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव कॉड लिवर ऑयल्स एंड फिश liver oils are generally observed. So those things we are getting it from saturated and unsaturated fatty acids. आपको एग्जाम के लिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसका बायोसिंथेसिस आएगा. दिस इज वन वे दैट वी हैव सिंथेसाइज्ड इट, द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इसका आपको जरूरत पड़ेगी. ये आपके असेंबली जो फैटी एसिड का जो सिंथेस का असेंबली है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पर है. एंड हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड, दैट इज वी हैव डिपिक्टेड ओवर हियर इन दिस स्लाइड. दिस विल देन ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस. बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड will be a 4 marks question for your exam. Then we have triglycerides, simple glyceride, triglycerides and mixed triglycerides. ये आपको जनरली 1 या 2 मार्क के लिए आएंगे, एग्जाम्पल के साथ में देना होता है. 1 या 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए एक शॉर्ट नोट आएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का 3 मार्क के लिए एक शॉर्ट नोट होता है. तो दैट हाउ दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी जनरेटेड. तो YouTube का चैनल सब्सक्राइब करके रखो, तो वहां पे आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा. जैसे ही अगर नोट्स आ जाते हैं तो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन एंड यू कैन गो थ्रू दैट नोट.